ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ, ਜਿਨੇ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਹਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਉ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨਿੱਘੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ, ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ, ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋ। ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰ ਕੀ। ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਦਾਤ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਦਾਤ, ਜਾਂ ਕੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ। ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਜੀ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ।
उचारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सा धरती पई हरियावली, जिथै मेरा सतगुर बैठा आए। सिख धर्म दे अंदर जितना सत्कार गुरु दा है, इतना सत्कार किसे दा नहीं। क्योंकि गुरु ही जीवन नू घड़न वाला है, गुरु ही जीवन नू चमकाउण वाला है। और गुरु दी नदर विच कितनियां बख्शिशां ने, ये आपां बाणी विच पढ़ने आ कि लख लख शब्द वरत दिता, दो चार दा जिक्र नहीं। लख खुशियां पातशाहियां कदों, जे सतगुर नदर करे। जे गुरु दी रता मातर भी नदर हो जाए ते दो चार खुशियां की, दो चार पातशाहियां की, लखां पातशाहियां ते खुशियां उस जीव दी झोली विच पै जांदियां ने, जिस दे उत्ते गुरु की नदर, गुरु दी कृपा हो जाए। अज आपां धन धन श्री गुरु हर राय साहिब महाराज जी दा प्रकाश गुरपुरब मनाउण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच जुड़े हाँ। धन गुरु हर राय साहिब महाराज जी दा जो जीवन है, वो जीवन बहुत ही प्यारा, और उस जीवन विच इतनियां वडियाइयां ने कि मेरे वर्गे करोड़ां कथावाचक भी आ जान, गुरु हर राय साहिब जी आप दी जे जीवन दी विचार कोई भी संपूर्ण नहीं कह सकता। उसदा कारण है कि जेहबा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत सुवामी तेरा अंत न किन्ही लईए। महाराज असी ते अलपग हाँ, ते आप दे अंदर ते गुरु नानक दी जोत विराज रही है। उस गुरु नानक दी जोत जिस दे लई शब्द हन कि आप नारायण कला धार जग में परवरियो। साडे वर्गियां ते कृपा करन वास्ते अकाल पुरख ने इन्हां 10 जामियां नूं धारण कीता। ते कई बार मन विच एक जिक्र आउंदा है, गुरसिख आपस विच गल भी करदे ने कि जी गुरु नानक महाराज दा समा क्यों जिहा होएगा, गुरु अर्जुन देव जी दा समा क्यों जिहा होएगा, गुरु हर राय जी दा समा क्यों जिहा होएगा। काश असी भी उत्थे हुंदे। ये मन अंदर वलवला हुंदा है। पर किसे महापुरुष ने बड़ी प्यारी गल कही, कहंदे भाई जे तुसी गुरु साहब दे समय हुंदे, गुरु नानक महाराज दे समय हुंदे ते गुरु अर्जुन नूं नहीं सी वेख सकदे। गुरु अर्जुन साहिब वेले हुंदे ते कलगी वाले नूं ना वेख सकदे। कहंदे तुसी कहंदे उन्हां दे वड्डे भाग सन जेड़े गुरसिख उस वेले होए, ते महापुरुष कहंदे सन उन्हां तो वड्डे भाग तुहाडे ने, क्योंकि तुहाडे कोल 10 पातशाहियां ग्रंथ साहब दे रूप विच बैठियां होईयां ने। गुरु हर राय साहिब महाराज ने कृपा कीती, बख्शिश कीती। आपां सारिआं नूं इह उद्दम उपराला बख्शिया कि भाई गुरु घर पहुँचो और गुरपर्व प्यार ते चाव दे नाल मनाओ। 1630
जनवरी दा महाराज दा प्रकाश इस संसार दे अंदर पिता दा नाम सत्कारयोग बाबा गुरदित्ता जी है और माता दा नाम माता निहाल कौर है। फिर सुनियो, गुरु हर राय साहिब जी दे पिता जी दा नाम बाबा गुरदित्ता जी है और इन्हां माता दा नाम माता निहाल कौर है। 16 जनवरी का इन्हां दा मन्निया जाता है प्रकाश और 1630 दे अंदर, क्योंकि हुण डेटा चेंज होंदियां रहिंदियां ने, इस वास्ते भी थोड़ी मुश्किल आउंदी है। चाहिदा तां इह है कि जिवें साडे जन्म दिन बच्चियां दे जन्म दिन इक्को तारीख फिक्स होण, इसे तरीके नाल गुरु बाबा जी दे जेड़े ज्योति जोत जा प्रकाश दिहाड़े हैं ये भी पूरे फिक्स होण ताकि सिख कौम नूं पता लग सके कि कदों बाबा जी दा गुरपुरब है। बाबा गुरदित्ता जी गुरु हर राय साहिब जी दे पिता जी हैं ते बाबा गुरदित्ता जी दे पिता जी हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। आप जी ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे जीवन विच ये पढ़िया ते सुनिया होएगा कि जिस वेले अमृतसर साहब तो बाबा गुरदित्ता जी दी बरात जा रही सी ना, उस वेले गुरु तेग बहादुर जी 6 सालां दे छोटे सन। जिस वेले एक नंगा बच्चा देखिया ते अपने कपड़े उतार के उस बच्चे नूं पवा दिते सन ते माता जी ने डांटिया, हुण बरात जाण दा समा आ गया, तेरे कपड़े कित्थे ने? ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कहा सी, नानकी इसनूं डांट ना, ये जेड़ा कम करन लई आया सी इहने शुरू कर दिता। अज किसे दा तन नंगा देखिया इहने कपड़ा पा दिता, कल नूं किसे दा धर्म नंगा वेखेगा अपनी कुर्बानी दे देगा। ये बाबा गुरदित्ता जी दे विआह वाले दिन की गल है, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी वड्डे सपुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे सन ते इन्हां दे घर दे अंदर जदों बाबा धीरमल जी ते गुरु हर राय साहिब महाराज जी दा जदों आगमन हुंदा है ते गुरु हर राय साहिब महाराज जी दा जो जीवन है वो अपने दादा जी दे नाल बहुता जुड़िया होया है। पिताजी बाबा गुरदित्ता जी उदासियां ते रहिंदे सन, उन्हां दा ध्यान जोगी संप्रदा दे नाल जुड़िया होया सी, क्योंकि बाबा श्री चंद जी ने उन्हां नूं गोद लिया होया सी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी कोलों मंगिया सी। जदों बाबा श्री चंद जी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कोल आए ते बाबा श्री चंद जी बोलदे थोड़ा खरवा जिहा सी, कहते होर सुना बई की हाल है तेरा? ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने हथ जोड़े भी तुसी गुरु नानक बाबा जी दे सपुत्र हो, बहुत वड्डे हो, सत्कारयोग हो। कहते तेरे घर बच्चा होएगा ते सानू चाहिदा है। कहते बाबा जी तुहाडा ही है। जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी होए ते उन्हां नूं बाबा श्री चंद जी नूं सौंप दिता गया सी। हुण गुरु हर राय साहिब महाराज दा जदों आगमन होया ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दी देख रेख विच इन्हां दी परवरिश हुई। जदों गुरु हर राय साहिब महाराज जी तकरीबन 11 कुछ सालां दे होए ने ते उस वेले अपने दादा जी दे नाल हरगोबिंद पिता जी नाल सैर करन वास्ते जांदे ने। और ये साखी तकरीबन आपां सारिआं नूं पता है कि महाराज जी अगे अगे
ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਤਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਉਸ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤ ਦਾ ਕੋਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਿਓ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜਨ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸੂਈ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੂਈ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਭਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
पैरां दे थल्ले बक्शा रखिया ते उहदे विच सुट के रखदा है। तू बिल्कुल छोटी जी ते तैनू कदे पगड़ी विच ला के रखेगा, टोपी च ला के रखेगा, है तू मेरे कोलों छोटी। ते सूई ने जवाब दिता कि गल छोटे वड्डे दी हैयो नहीं, गल ते ये है तू तोड़नी है ते मैं जोड़नी आ। बस इन्नी गल है कि तू कटनी है कपड़े नू ते मैं जोड़नी आ। कट्टण वाले रुल जाते ने, जोड़न वाले ताज बन जाते ने। सिखा जिस दिन तोड़न ते आएगा गुरु तो बेमुख हो जाएगा, जिस दिन जोड़न ते आएगा उस दिन फिर गुरु कहेगा हो कुर्बान जाओ, हो कुर्बान जाओ, हो कुर्बान, हो कुर्बान जाओ तिना कह, हो कुर्बान जाओ तिना कह, हो कुर सारे लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा। इस करके तोड़न वाला कम अरदास करियो बाबा जी कदे ना होवे, ते जोड़न वाला जितना हो सके रहंदे सुआसां तक बस जोड़न वाला कम करिए। गुरु अर्जुन देव साहिब महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं कहा सी, कहंदे बाबा जी पता है ग्रंथी दा अर्थ की हुंदा है? बाबा जी ने हथ जोड़ दिते, कहंदे महाराज नहीं पता। कहंदे ग्रंथी दा अर्थ हुंदा है गुन्नण वाला, जिहड़े फुल्लां दे सेरे गुन्नदे ने ना उन्नू भी ग्रंथी कहा जाता है। कहंदे ग्रंथी दा अर्थ है फुल्लां नू गुन्नण वाला। जिवें धग्गे नाल फुल गुन्न देंदा है बंदा, तुसी सिखां दी सुरत गुरु नाल गुन्न दिओ, तुसी गुरु के ग्रंथी सिंह हो। एडा वड्डा मान महाराज ने बख्शिया। जिस वेले सतगुरा जी ने चारे जंगा लड़ लईयां, महाराज दी फतेह होई ते समा अपनी चाले चलिया, ते महाराज ने गुरु तेग बहादुर जी नूं भेज दिता सी बाबा बकाले। और योग जान के गुरु हरगोबिंद पिता महाराज जी ने जिहड़ी गुरता गद्दी बख्शी, वो अपने पोतरे धन धन श्री गुरु हर राय साहिब महाराज जी नूं बख्शिश कीती। जिस वेले कीरतपुर साहिब दी धरती ते तकरीबन 14 सालां दी उम्र विच गुरु हर राय साहिब महाराज गुरता गद्दी ते बैठे, ते चारे पासे खुशियां दा माहौल, चारे पासे गुरु दे घर दियां जय जयकारां, महाराज जी दी किशोर अवस्था ते संगतां गुरु नूं वेखण वास्ते आउण। हुण जेड़ा भी गुरु हर राय साहिब जी नूं वेखे, वेखदियां सार उन्नूं ठंड पै जाए, वेखदियां सार इंज लगे कि गुरु नानक दी 7वीं जोत इत्थे बिराजमान है। ते महाराज जी ने अपने दादा जी दे हुक्म नूं कमाया। अपने नाल उन्होंने तकरीबन 2200 घुड़सवार हर वेले रखे। महाराज जी दे कोल 2200 घुड़सवार हर वेले रहिंदे सन, क्योंकि गुरु पिता जी ने शब्द कहे सन कि हर राय जी कोशिश करियो जंग ना करनी पवे, कोशिश करियो जंग ना करनी पवे, पर फिर भी अगर तुहाडे ते आके कोई हमलावर पै जाए ते फिर कायरता नहीं करनी, उहदा जवाब भी तुहानू देना है। इस करके महाराज जी अपने नाल 2200 घुड़सवार हर वेले रखते सन, पर चूंकि समा जंग दा नहीं बनिया, इस करके महाराज जी ने जंग नहीं की। सतगुरु महाराज जी दे कोल जदों संगतां आउंदियां ने, बहुत प्यार वालियां संगतां,
और ये नहीं कि मत्था टेकिया तो एकदम बंदा पिछे नूं भजिया ते कहा महाराज हुण अगली संगरांद वेखांगे, अगले एतवार देखांगे। नहीं, पहला संगतां जांदियां सन, 2 महीने 3 महीने उत्थे ही रहना, उत्थे ही सेवा करनी और उत्थे ही गुरु चरणां दा प्यार मानना। ये बड़ी वड्डी किरपा फिर उत्थों लैके आंदे सन। महाराज जी दे कोल अनेकां सिख चरणां विच आके उन्हां मत्था टेकना, असीसां लैणियां। ते सतगुरु महाराज जी शिकार नूं जांदे सन जंगल विच। हुण शिकार नूं जाना पर पंछियां नूं मारन वास्ते नहीं सी जांदे। जेड़े पंछी किते कोई जख्मी पिया है, कोई प्यासा पिया है, उन्हूं चुक के लियाउणा। और बहुत वड्डा बाग बनाया होया सी महाराज ने, उत्थे उन्हां पंछियां नूं छड्ड देना, उन्हां पशुआं नूं छड्ड देना। उन्हां दे प्रशादे पानी दा इंतजाम बाबा जी ने आप करना। सिख कौम जागी, लोकां नूं दसिया ते गुरु हरराए जी दे प्रकाश पुरब ते पर्यावरण दिवस भी मनाना शुरू होया सी। क्योंकि गुरु महाराज जी आप प्रकृति नूं बहुत प्यार करदे सन। देखो कदे उन्हां कोलों फुੱਲ नहीं वेखिया गया जिहड़ा टुटिया सी, कदे जख्मी पंछी नहीं वेखे गए, उन्हां नूं महाराज ने बाग विच रखिया। ते तीजा वड्डा कारज महाराज ने यह कीता कि दवाखाना बहुत वड्डा खुलिया। कीरतपुर साहिब दा जेड़ा दवाखाना सी ना, वो पूरे हिंदुस्तान दा सब तो वड्डा दवाखाना सी। आपां कवांगे जी किवें? इस दा अंदाज़ा आप नूं इस गल नाल लग जाएगा, जिस वेले शाहजहां दा पुत्र दारा शिको ते ओदा नाल भरा औरंगजेब ने गद्दी दी खातर दारा शिको नूं शेर दी मुछ दा बाल खवा दिता प्रशादे विच। हुण शेर दी मुछ दा बाल ये गलदा नहीं, जितना मर्जी कोई, पर यह गलदा नहीं, ये अंदर नासूर बना देंदा है। दारा शिको नूं पता लग्या ते अंदर उन्हों परेशानी होनी शुरू हुई। शाहजहां ने कहा कि जितने भी वैद हकीम ने सारियां नूं लगा दिओ। हिंदुस्तान दे सारे वैद हकीम लग गए पर किसी कोलों आराम नहीं आया। शाहजहां दे दरबार विच गुरु घर नूं मन्नण वाले भी रहिंदे सन। हैन वो मुसलमान सी पर मनदे गुरु नानक बाबे दे घर नूं सन। उन्हें एक गल कही कि ऐ शाहजहां, आपां ते हिंदुस्तान दे बादशाह हां, साडे कोल सब तो वड्डे दवाखाने ने, इत्थों भी आराम नहीं ना आया ते एक थां ते आराम आ सकदा है। पुछया कित्थों? कहंदे कीरतपुर साहिब दी धरती ते। क्योंकि जिहड़े वैद सन उन्होंने खास किस्म दी लौंग, खास किस्म दा हरड़ ते गज मोती, इन्हां 3 जड़ी बूटियां नूं मिला के वो दवाई बननी सी। पर वो लौंग ते हरड़ किसे कोल नहीं सन जेड़े उस दवाई विच पैणे सन। जिस वेले आया वफद शाहजहां दा दारा शिको नूं लैके ते आके बेनती कीती कि करो कृपा महाराज जी, साडा बच्चा बीमार है। ते महाराज ने यह नहीं वेख्या कि इन्हां ने गुरु जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया, इन्हां ने दादा जी नाल जंगां कीतियां। ताई ते महाराज दी बाणी कहंदी है सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। महाराज ने ताई बाणी विच कहा कि दरवेसां नूं लोड़ी है रुखां दी जीरांद। कहंदे जे तू दरवेश बनना है, फकीर बनना है ना, ते पेड़ वर्गा बन, पेड़ वर्गा परोपकारी बन। एक बंदा धुप विच आया, पेड़ सारी धुप अपने शरीर ते सहारदा है, बंदे नूं ठंड देंदा है।
बंदा भुखा 2 घंटे सौ के उठिया, वेख्या फल बड़े चंगे ने, मारिया वट्टा उसनू, ये नहीं वेख्या भी मैनू ठंड दिती, उन्हें मारिया वट्टा दरख्त नू, दरख्त ने फिर परोपकार किया ते उन्होंने फल दे दिते। फल दे दिते। उस तो बाद कहते ने जदों हड़ आउण लगे पिंड विच, बंदे ने की कीता, वो दरख्त नू वड्डिया ते उहदी बेड़ी बना लई ते उन्हें फिर परोपकार किया। जिन्हां कोल बेड़ियां नहीं सी वो डुबने शुरू हो गए। दरख्त ने कहा कोई गल नहीं, तू मैनू कट भी दिता है ना, आ मेरी बेड़ी विच बह जा, मैं तैनू डुबण नहीं देंगा। एडा वड्डा परोपकारी जीवन। जिस वेले महाराज कोल आए दवा लैण वास्ते, सतगुरु ने नहीं वेख्या तत्ती तवी वाली गल नू, नहीं वेख्या चारे जंगां दी गल नू, नहीं वेख्या बाबर दी गल नू, बस उन्हां एक गल कही कि ए आए ने शरण विच ते शरण आए दी लाज रखना ये गुरु दा काम है। गुरसिखो अज भी साडे कोलों जाने अणजाने किन्नियां गलतियां हो जांदियां ने। वो गलतियां रिश्तेदारां नू पता लगण, असी किसे नू मूँह ना विखा सकीए, लोग एडी रिश्तेदारां दे अंदर एडी बेइज्जती बंदे दी कर देंदे ने भी फलाना ए फलाना ओ। मैं कहना साडे कोल किन्नियां बुराइयां, रिश्तेदारां नू चार भी पता लग जाण, बंदे दा जीना औखा कर देण। हे गुरु ग्रंथ साहिब जी, तैनू ते सारियां ही पता ने, पर तू तां भी साडे वर्गियां नू बख्श के अपने गले नाल लगा लेना है। यह है गुरु। जिस वेले महाराज नू बेनती की सच्चे पातशाह जी ने, उसे वेले अपने हत्थां दे नाल उस दवा नू बनाया और दवा नू महाराज ने अपनी नदर नाल देखिया। जिस वेले वेख्या कृपा वरत गई। महाराज ने कहा एनू खवा देना ते कृपा वरत जाएगी। जिस वेले दारा शिको ने वो दवा खाई ते ओनू देह अरोगता मिली। वो महाराज जी का शुकराना करन वास्ते भी, मत्था टेकण वास्ते भी आया सी। हुण गुरु दे कोल अनंत संगतां आ रही ने, कृपा वरत रही है। एक दिन एक सिखां दे टोले ने आके महाराज नू एक बेनती की। जिहड़ियां संगतां आईयां सन ना, उन्होंने बेनती की, सच्चे पातशाह साडा सारियां दा ये सवाल है तुहानू। महाराज कहंदे ने पुछो भाई। वो सवाल उन्हां गुरसिखां दा भी सी ते अज तकरीबन कईयां दा साडा भी होएगा। ते जवाब सुनियो बाबे दा की जे, उस वेले भी ते अज भी इको ही जवाब है। महाराज जी कहन लगे पुछो भाई सवाल की है। कहंदे महाराज सवाल ये है कि तुमरे सिख पढ़े गुरबाणी। महाराज असी तुहाडे कोल सेवा करन आए आ, सिमरन करन आए आ, तुहाडी कृपा नाल असी बाणी पढ़ने आ। महाराज जी तुमरे सिख पढ़े गुरबाणी, अर्थ बेअर्थ कछू ना जानी। महाराज जी असी बाणी पढ़ने आ, पर सानू ये नहीं पता लगता एदा अर्थ की होएगा। हुण साडे कईयां दे अंदर हुंदा है जी कीर्तन सुन लिया पर अर्थ नहीं पता लग्या भी अर्थ की होएगा। जिस वेले महाराज नू कहा तुमरे सिख पढ़े गुरबाणी, अर्थ बेअर्थ कछू ना जानी, ते सच्चे पातशाह फिर साडा भला किवें होएगा। सानू ते एदे अर्थां दा पता नहीं, ते जे अर्थां दा पता नहीं ते बाणी पढ़न दा कुछ फायदा है जां नहीं। महाराज जी चुप हो गए। सिखां ने थोड़ी देर इंतजार की कि महाराज कुछ कहणगे। सच्चे पातशाह ने कुछ शब्द नहीं कहा जाओ लंगर विच सेवा करो। उन्हें सोचा शायद गुरु जी जवाब नहीं देना चाहते जां अजे साडे भाग चंगे नहीं कि गुरु का जवाब सुन सकिए। महाराज जी ने लंगर विच भेज दिता। अगले दिन जिन्हां ने वो सवाल किया सी ना, महाराज कहन लगे आओ जंगल नू चले आ ते वेखदे आ कोई जख्मी पंछी पिया होवे ते उन्नू चुक के लियाने आ। चलो सतगुरु।
महाराज जी का घोड़ा अगे अगे बाकियां दे घोड़े पिछे पिछे टुरदियां 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 जंगल दे अंदर की वेखिया, मट्टी दी हांडी पई हुई सी जिहदे अंदर कदे दुध रिड़किया गया सी। वो हांडी दे ठीकरे पए हुए सन, फुट्टी हुई, जिन्हों आप चाटी कह लैने आ, जिहदे अंदर दुध रिड़किया जाता है। 10-20 साल उहदे विच दुध रिड़किया गया, वो खराब हो गई ते लोकां ने उन्हें सुट दिता। उहदे छोटे छोटे ठीकरे पए सन, उपरों दी सूरज बड़ी जोर नाल चढ़िया होया सी। हुण जेड़ी ठीकरे पए सन उस हांडी दे ते उपरों दी सूरज दियां किरणां उस हांडी ते पईयां, अंदर उहदे घिओ समा गया सी, क्योंकि बड़ा चिर उन्हें घिओ दी संगत कीती, बड़ा चिर उहदे अंदर घिओ पैंदा रहा सी ते ओह घिओ उहदे अंदर रच गया सी मट्टी विच। उहदी जिहड़ी थिंदियाई सी, चिकनाहट सी, वो सूरज दे नाल बड़ी चमक रही सी। महाराज ने कहा, ये जिहड़े हीरे वर्गे पए ने, इन्हां नूं चुक के लियाओ, ये की है? जिस वेले सिखां ने चुकिया, महाराज नूं दिखाया, सच्चे पातशाह ये तां मट्टी है, मट्टी दी हांडी टुटी हुई है, ठीकरियां ने। महाराज कहण लगे, भाई ये चमक क्यों रही है? कहंदे महाराज एदे अंदर 10-20 साल घिओ रखिया गया। महाराज कहंदे ने, घिओ इस मट्टी ने खादा ते नहीं होएगा? कहंदे महाराज खादा ते नहीं, खाया ते लोकां ने, पर महाराज बड़ा चिर एदे अंदर रखिया गया ते सुते सिद्ध एदे अंदर वो प्रवेश कर गया, इस करके ये चमक रही है। गुरु हर राय जी कहण लगे, तुहाडे कल दा जवाब जे, कल दा जवाब, मट्टी ने घिओ खाया नहीं, पर घिओ दी संगत लगातार कीती ते एदे अंदर वो रच गया। सिखा जे तैनू बाणी दे अर्थ नहीं भी आंदे, तू बाणी नू लगातार पढ़दा रहो, बाणी दी संगत दा सदका तेरा जीवन भी चमक जाएगा। ये जवाब दिता सी महाराज ने। साहिब कहंदे ने, जे तैनू अर्थ नहीं भी आंदे ना, कोशिश करो अर्थ आण। पर कई बुजुर्ग जिवें चलो कोई पढ़िया लिखिया घट है, नहीं पढ़िया जाता, कहते ने बाणी नू इंज समझी जिवें बाणी गुरु, गुरु है बाणी। जेड़ा बंदा बाणी नू इंज पढ़ेगा कि ये मेरा गुरु है, मैं गुरु नाल गल्लां कर रहा वां, मैं दावे नाल कहना वा, जे उहदे अर्थ पल्ले नहीं भी पैणगे ते उसका जीवन उच्चा ते सुच्चा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने गुरु नाल प्यार किया। ते महाराज कहंदे ने, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नहाओ। ये बाणी उहदे अंदर दी मैल नूं दूर कर देगी। ये शब्द गुरु हर राय साहिब जी ने बड़े इतिहासिक शब्द दिते ने। अज मेरे वर्गा कोई कच्चा पिल्ला आके कहे, नहीं जी तुहानू गुरबाणी दे अर्थ नहीं आंदे, तुहानू विश्राम नहीं आंदे, तुहानू गुरबाणी दी ग्रामर नहीं आंदी, तुहाडा फायदा कुछ नहीं। मैं कहना वा, ये कोई भूगोल या इतिहास की किताब नहीं, ये दरगाही कलाम है। एनू ते कोई कन्ना नाल सुन भी लेगा। ते बाबा जी कहंदे ने, सुने दुख पाप का नाश, सुने दुख पाप का नाश, सुने दुख नानक भगता सदा विगास, नानक भगता सदा विगास, नानक इस करके गुरबाणी नू दरगाही कलाम समझना है। इसदा ते एक अखर भी किते अंदर वस गया, महाराज कहंदे ने 21 कुलां दा बेड़ा पार गुरु तेरा कर देगा। ये दरगाही बाणी है, ये धुर की बाणी है, ये खसम की बाणी है, ये बाणी गुरु है ते गुरु ही असल विच बाणी है। गुरु हर राय पिता महाराज ने ये जवाब दिता उन्हां सिखां नूं। सच्चे पातशाह महाराज जी जिवें तकरीबन जंगल नूं रोज जांदे सन, ते अज सतगुरु जी गए ने जंगल नूं
ते कीरतपुर साहिब दे अंदर पिंड दे पिछले बन्ने पिंड दे अखीर विच कह लईए एक घर सी। उस घर दे अंदर केवल एक बुजुर्ग माता रहिंदी सी। है सी बुजुर्ग, पर बाबा जी दे दर्शन करन वास्ते वो रोज चली जांदी सी, हौली हौली जाना ते गुरु दा नाम जपदियां जपदियां वापस आउणा ते बड़े आनंद विच रहिंदी सी। इधरों महाराज जंगल नूं गए ते दूजे पासे उस माता दे मन अंदर फुरना आ गया। कहंदे सच्चे पातशाह मैं तेरे घर जानी हाँ, तेरे दरबार जानी हाँ, सतगुरु हीरे मोतियां दे ढेर लगे होंदे ने। महाराज तेरे घर एडे पदार्थ रखे होंदे ने कि कोई अंत नहीं, बेशुमार पदार्थ तेरे अगे चढ़ते ने। ते वो माता ना हस के आपे ही हसी जा रही है, हस के कहन लगी वे पदार्थां नूं छकण वाले गुरुआ, किते मेरी गुड़ वाली रोटी खावे ते मैं भी जाना, किते मेरी भी खावे ते मैं भी जाना। गुरु नानक ते बूए खड़का खड़का के रोटियां खादियां गरीबां दियां। गुरु हर राय जी किते तू कृपा कर दे। सच्चे पातशाह महाराज फिर भावना नूं समझण वाले, मैं कहना कई बार बच्चे दी भावना मां ना भी समझे, वैसे बच्चे दी भावना मां समझ जाती है, पर कई गल्लां मां भी नहीं समझ पाती। पर सिख दी कोई ऐसी भावना नहीं जेड़ी गुरु ना समझे। गुरमुखो तुसी भावना बना के वेखो प्यार वाली, ते गुरु नाल दे नाल कृपा कर देगा, कोई गुरु देरी नहीं लगाएगा। सच्चे पातशाह महाराज उधरों दी जंगल तो टुर पए ते इधरों दी इन्हें प्रशादा बनाना शुरू कर दिता। जिवें प्रशादे दो बनाए ते उहदे उत्ते नाल शक्कर रख दिती, थोड़ा मक्खण पा दिता ते कपड़े दे पोने विच उन्होंने वलेट के रख दिता। हुण सोचदी है सच्चे पातशाह मैं तेरे घर जावां ते उत्थे इन्हां प्रशादियां नूं कोई नहीं पुछेगा, क्योंकि एडे पदार्थ पए होए ने। महाराज ना जावां ते अज मैनू चैन नहीं पैना, मैं सोचनी अज प्रशादा तू इन्हां दा छके। हुण ओदी भावना माता दी एडी पवित्र हो चुकी है। महाराज कहंदे ने, देखो बाबा कबीर जी दा एक बचन है जी, बाबा कबीर जी कहंदे ने तू अपने मन नूं निर्मल बना ले, किसे प्रति मैल ना रख। सुनियो, किसे प्रति मैल ना रख, तेरा मन जिस दिन निर्मल हो गया, कहंदे लोक परमात्मा नूं लभदे फिरदे ने, परमात्मा तैनूं लभदा फिरेगा। भी एडे पवित्र जीवन वाला कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। ते फिर होएगा कि पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर। कबीर ओ कबीर मेरी गल सुन भाई, किथे चले है, तेरा मन पवित्र ते फिर गुरु तेरे अंग संग। माता दा मन पवित्र, भावना यह है कि प्रशादा छकावां, हुण किवें करां किवें ना करां, दिमाग कम नहीं कर रहा। मैं कहना जिथे दिमाग कम ना करे उत्थे दोए हथ जोड़ गुरु नूं अरदास करियो, फिर गुरु उत्थे तक पहुंचा देगा जिथे असी सोचिया भी नहीं सी होएगा। ये गुरु की बख्शिश। महाराज जी उधरों दी टुर पए और महाराज कहन लगे भुख बहुत जोरां दी लगी है, आओ चलिए। सारिया संगतां घोड़ियां नाल, सिख पिछे पिछे, महाराज जी अगे अगे। रस्ता ते गुरु दे घर नूं जांदा सी दूजा, महाराज चले गए बिल्कुल सीधे जेड़ा माई दे घर नूं जा रहा सी। सिख कहन लगे महाराज जी इधर, साहिब जी कहन लगे अज इधर नहीं, अज इधर, अज उधर नहीं, अज इधर। सच्चे पातशाह महाराज ने वेखिया बूआ खुलिया सी, पहला वड्डे दरवाजे हुंदे सन। महाराज जी घोड़े सने अंदर चले गए उस घर विच, ते जाके जदों महाराज ने माता नूं वेखिया ते बाबा जी कहन लगे माई साडा जंगल विच रहना तू मुश्किल कर दिता, लिया जेड़े प्रशादे बनाए ने, लिया जेड़ा तू पदार्थ बनाया है। जिस वेले माता ने तकिया सतगुरु आप आए जे, महाराज कहन लगे पौने चिचो रोटियां चक ते मैनू दे।
सच्चे पातशाह महाराज ने इतिहास है, महाराज जी घोड़े तो उतरे नहीं, घोड़े दे उत्ते ही बह के प्रशादा महाराज ने छकिया। जिस वेले महाराज जी प्रशादा छक रहे सन ते घोड़े दे लगाम नूं पकड़ के वो माता खड़ी सी, ते पता है माता दे अंदर फिर इन्ना बैराग आ गया, इन्ने प्यार नाल जुड़ गई। कहंदी तू पापी हो बख्शनहार, गुरु हर राय तू पापी हो बख्शनहार। जिस वेले कही गई ते सिखां ने पकड़ लिया माई नूं, हिलाया, माई आ 2 रोटियां दे के गुरु नूं पापी बना रही है। हिलाया जदों ते फिर सुरत आई, मैं हाय की कह बैठी, ते कहन लगी नहीं दाता हों पापी तू बख्शनहार। गुरु हर राय जी ने सिर ते हथ रखिया माता दे ते कहा माता हुण पहला वाला आनंद नहीं आ रहा, जिवें पहला कह रही सी वो आनंद बहुत वड्डा सी, क्योंकि इन्हां सिखां ने तेरे अखरां नूं वेखिया, पर मैं तेरी भावना नूं तकिया है। तेरी भावना दा सदका मैं इत्थे प्रशादा छकण आया वां। सिख कहण लगे अज गुरु नूं बहुत भुख लगी है, छेती प्रशादा तैयार कराओ। महाराज ने कहा सिखो अज भुख प्रशादे दी नहीं सी लगी, अज भुख गुरु दे प्रेम दी ते माता दे सिदक दी लगी हुई सी। जदों ये गल सिखां ने सुनी ते फिर सिखां ने कह दिता ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत। सिख कहन लगे महाराज तेरे तो बलहार हाँ, क्योंकि तू एडे सिखां दी भावना दी कदर करन वाला है। सतगुरु महाराज जी ने होर भी अनंत किरपावां ते बख्शिशां कीतियां। सतगुरु महाराज जी ने एक वड्डी किरपा ये कीती जिस दा कोड़ अज लोकां दे अंदर पिया होया है। सिखां ने 24 घंटिया दे विचों 20 घंटे लंगर वरतान ते लगा दिते, एडा परोपकार किया। 24 घंटिया चों 20 घंटे उन्हां लंगर वरतान ते लगा दिते। पर दुख दी गल यह है कि तकरीबन 30% सिख क्रिश्चन धर्म धारण कर चुके ने पंजाब दी धरती ते। वो कहते ने तुसी पगड़ी नहीं उतारनी ना उतारो, गुरुद्वारे जाना है जाओ, जो कम तुसी करना है करो, बस आ तुसी इन्ना को मन लो भी तुसी क्रिश्चन हो। कल दी खबर दस रहा लोका कहा 30% जेड़े लोग ने ना अंदर तो क्रिश्चनिटी नू कबूल कर चुके ने, वेखण नू सिख लगणगे। मैं कहना वा सच्चे पातशाह तू ते कमी कोई नहीं कीती, पर असां कुछ रहन नहीं जे दिता। हुण गुरु हर राय जी दे जीवन चों सिखियो, जेड़ी गल दास करन लगे है, जेड़ा अज दुखांत वापर रहा है। महाराज जी जदों जंगल नू जा रहे सन ना ते सिख महाराज जी दे नाल सन, ते सतगुरु महाराज जी की वेखदे ने कि एक बहुत वड्डा सप है, अजगर सप कह लईए, ते ओनू तकरीबन अरबां खरबां कीड़ियां ना चिमड़ियां हुईयां ने, बहुत कीड़ियां उन्होंने चिमड़ियां ने। वो कदी इधर नू कलाबादी खाए कदे इधर खाए, बड़ा परेशान। सिखा ने कहा महाराज जी एक कृपा करो, आप जी सानू हुक्म लाओ, महाराज असी 2-4 घड़े पानी दे लिया के ते एदे उत्ते पा दईए। महाराज कीड़ियां भज जाणगियां, इन्हां जीना एदा मुश्किल किया होया, महाराज इनू कट रहीआं ने। महाराज जी ने पता है की किया, साहिब कहन लगे भाई जन्म भावें 10 लै लईए, हिसाब किताब ते बराबर हुंदा ही है। महाराज जी हिसाब किताब बराबर, केड़ा हिसाब किताब कीड़ियां दा ते केड़ा हिसाब इस सप दा? महाराज ने फिर बचन किया सी, कहंदे हिसाब यह है पहले जन्म विच ए गुरु बनिया ते गुरु बनिया कच्चा।
गुरु बनिया कच्चा, लोकां दियां धीआं भैणां ते एने नज़र रखनी, लोकां दे धन दौलत ते नज़र रखनी, लोकां नूं उंज ही सेव दे के कही जाना तू मुकत हो गया है, उंज ही किसी नूं कह देना तेरा जीवन बहुत उच्चा हो गया। एने कहंदे कच्चे गुरु ने डेरा ते बड़ा वड्डा बनाया, बड़े लोकां नूं भरमाया। कहंदे आ जिहड़ियां कीड़ियां ने ना इहदे चेले ने, ये जिहड़ियां कीड़ियां इहदे चेले ने, ते इस करके इहनूं वढ रहीआं ने, कुट रहीआं ने। कहंदे तू साडा पिछला जन्म बर्बाद कर दिता, ना आप मुकत होयो ना तू सानू मुकत होण दिता। कहंदे ऐ तो चंगा हुंदा असी गुरु नानक दे बन जांदे, जिहड़ा गुरु नानक आप मुकत है ते सानू भी मुकत कर दिंदा। कहंदे ये अपना बदला लै रहीआं ने। मैं कहना वा गुरमुखो अज बचो उन्हां लोकां तो जेड़े लोग अपने नाल जोड़ रहे ने, जेड़े लोग अपनी वखरी मर्यादा चलाई बैठे ने। मर्यादा केवल इको है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे घर दी। अकाल तखत दी मर्यादा सब तो श्रोमणी है। आ हुण साडे धर्म विच सब तो फेमस लफज की है? वाहिगुरु। आपां कहने आ जी वाहिगुरु शब्द कोई भी कह दिंदा है। हुण तुसी हैरान होवोगे वाहिगुरु जपण दे तरीके किन्ने ने। कोई किवें जप रहा, कोई किवें जप रहा, कोई किवें जप रहा है। कोई छेती छेती वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई वाहे गुरु, कोई इंज, कोई होर तीजे तरीके नाल, कोई चौथे नाल। ते महापुरुषां नूं पुछिया सी बाबा जी तुसी कृपा करो वाहिगुरु किवें जपना है? पता है उन्हां की कहा? कहंदे हरमंदर साहिब दे अंदर हुंदी अरदास। हरमंदर साहब तो वड्डा ते कोई नहीं ना। उहदे अंदर जदों कहा ना कि जदों बोलिया जाता है बोलो जी वाहेगुरु, कहंदे बस जिवें हरमंदर बोलिया जाता है ऐ तो चंगा तरीका वाहिगुरु कहण दा होर कोई नहीं है। कह जेड़े मर्जी तरीके नाल लो, पर मर्यादा जिहड़ी हरमंदर विचों निकली है वो सानू मननी जरूर चाहिदी है। सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन। गुरु का गुरपर्व असी बड़े प्रेम अते श्रद्धा दे नाल गुरु हजूरी विच मना रहे हैं। सच्चे पातशाह अपना मेहर भरिया हथ रखन। हे गुरु हर राय साहिब जी अपनी कृपा वरतायो। अरदास बेनती है सच्चे पातशाह कि तुहाडियां संगतां घरों भावें कल्लियां आईयां ने, महाराज जदों ये जाण गुरु हर राय साहिब जी आप जी सारियां संगतां दे नाल जायो ते इन्हां संगतां दे कारज रास करियो। कोटान कोट शुकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ते आप गुरु प्यारियां संगतां दा जिन्हां बख्शिश कीती। बहुत टिकाव विच बाबा जी दे इतिहास नूं सरवण कीता। समूह प्रबंधक साहिबाना दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हां प्यार बख्शदे ने और आप संगत जी दे दर्शन करांदे ने। संगत विच सरदार महेंद्र सिंह जी, बीबा अमरजीत कौर जी, होर भी संगतां दूरों नेड़ियों पहुँचिया ने। सो सारे ही प्यार करते हैं। सारियां दा बहुत बहुत शुकराना है जी, शुकराना है। बाबा जी दे गुरपर्व दियां समूह संगत नूं लख लख वधाइयां होण। होइयां फुल्लां बख्शो। प्रेम सहित गुरफतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कले महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।